So today, now in this class, we are going to begin second order derivative test. So this is the second test for maxima and minima, and the name of the test is second order derivative test. Now here in second order derivative test, so everyone first of all, जैसे लास्ट डे मैंने बताया था कि पहले मैंने क्या किया था, स्टेप्स सारा लिखवा दिया था. एग्जैक्टली सेम वे आज भी पहले तुम लोग सारा पहले स्टेप्स लिख लो तो एक बार, ठीक है. राइट ऑन द स्टेप्स, देन आई विल टेक वन सम. विद द हेल्प ऑफ दैट सम आई विल एक्सप्लेन यू कि हम लोग कर क्या रहे हैं. ओके, सो एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन द स्टेप्स फर्स्ट. So suppose we have y equal to fx, a function. So step number 1, find f dash x, first step. And you all know what do you mean by f dash x. F dash x means differentiating the function with respect to x. So find f dash x, पहला step है. और dy by dx दोनों का मतलब क्या है, एक ही है. Now second step, now for the critical points, we have f dash x equal to 0. क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग f dash x को 0 से इक्वलाइज करेंगे, ठीक है. इक्वलाइज करके और फिर हम लोग x का वैल्यूज निकालेंगे. लेट्स अज्यूम दैट जो वैल्यूज मिलेगा वो वैल्यूज a b c है. अब कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग कि ये पॉइंट जो है, ये x का वैल्यू a b c किस पॉइंट पे ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम होगा या फिर लोकल मिनिमम होगा. तो इसके लिए हम लोग अभी टेस्ट कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. एंड फॉर दैट एवरीवन नोट डाउन, you have to once again differentiate f dash x to obtain f double dash x. So again differentiating f dash x with respect to x. So we get f double dash x. What is the meaning of f double dash x? f double dash x का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, f डबल डैश x का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और ऑल्सो वी कैन से d स्क्वायर y और d2y by dx स्क्वायर. ऑलराइट, मतलब हम लोग, क्योंकि ये मेथड का नाम ही क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब इस मेथड में हम लोग सेकेंड ऑर्डर निकाल के फिर टेस्ट करने वाले हैं. स्टेप 4, लेट अस टेक x इक्वल्स टू a. लेना तो है हम लोग को एक एक करके, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लेना है एक एक करके. लेकिन हम लोग एक बार पहले x इक्वल्स टू a लेते हैं, ठीक है. ले लिया मैंने. अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ फाइंड f डबल डैश k, दैट इज फाइंड d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू a. और अगर ये निकालने के बाद अगर if d square y by dx square, or let me just simply write on this way, if f double dash a is greater than 0, okay, if it is greater than 0, then x equals to a is the point of local minimum. Number 2, if f double dash a is less than 0, then x equals to a is the point of local maximum. And number 3, if suppose f double dash a becomes 0, then use first order derivative test. All right everyone, these are the steps. You don't have to think कि कौन सा क्या मतलब क्या है. You just write down जितना तुमको भी, मतलब मैंने जो बोला वो समझ में आया, ठीक है. नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल लेकर के चीज क्लियर कर दूंगा. You don't have to worry regarding that.
Your simple task right now is, your only one task is to copy down what I have written on the board. So I give you time, everyone copy down first. So, I'm taking one sum, and that is question number 10. And the question is, fx equals to x to the power 4 minus 62x square plus 120x plus 9. All right. Now, everyone note down कि हम लोग कैसे यहाँ पे इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम या और लोकल मिनिमम हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देने का. If you see the steps in the copy, you have written in the copy. First step is differentiating fx with respect to x to get f dash x. So I am writing directly f dash x. Clear? ddx of x to the power 4 is 4x cube. ddx of 62x square is 124x. ddx of 120x is 120. ddx of constant is 0. So we got f dash x. It is not compulsory here to factorize. Just leave it. Now for the critical points, we have f dash x equals to 0. क्रिटिकल पॉइंट्स जानने के लिए हम लोग f dash x को 0 से इक्वेट करेंगे, इक्वलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे. तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120 इक्वल्स टू 0. देखो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो है नहीं जो मिडिल टर्म फैक्टराइज हो जाएगा. तो इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ तो? 4 कॉमन दिख रहा है. अगर मान लो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच जाएगा? x क्यूब माइनस 31x प्लस 30 इक्वल्स टू 0. 4 यहां पे डिनोमिनेटर में, आई मीन 4 एलिमिनेट हो जाएगा. तो फिर ये बच जाएगा x क्यूब माइनस 31x plus 30 equals to 0. Now see, you will not be able to factorize this expression. ये क्यूब है, ये x है, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे. बट उसके लिए हमको पता तो होना चाहिए ना कि फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर क्या है, ये हमको पता होना चाहिए. हाउ टू डिटरमाइन द फैक्टर? फैक्टर डिटरमाइन करने का तरीका होता है ट्रायल एंड एरर मेथड. मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम बता रहे, एक बार इसको रफ करेंगे. x क्यूब माइनस 36x, सॉरी 31x प्लस 30, x के किस वैल्यू पे 0 होगा हम लोग ये जानना चाहते हैं. आई रिपीट, ये एक्सप्रेशन x के किस वैल्यू पे 0 होगा मैं ये जानना चाहता हूं. तो इसका सिंपल तरीका क्या मैं बता रहा हूं, देखना एक बार. 30 कांस्टेंट और x क्यूब का जो हाईएस्ट, जो इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट टर्म है, आई मीन हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, उसका कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना. तो x का हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है x क्यूब, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म 30 है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर इसको फैक्टराइज कर देना. फैक्टराइज करके इन सारे फैक्टर्स को ही प्लस माइनस में लेकर के, मतलब +2 या -2, +3 या -3, +5 या -5, +1 या -5 लेकर के यहाँ पे पुट करना और चेक करना कि किस x के वैल्यू पे ये 0 हो जा रहा है. कुछ भी नंबर मत ले लेना. ऐसा होता है कि कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन लॉजिक ये है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे +2 -2 +3 -3 +5 -5 +1 -1 लेके हम टेस्ट करेंगे कि किस x के वैल्यू पे ये 0 आ रहा है. अगर हम यहाँ पे देखें x का वैल्यू 1 लगा के, तो यहाँ पे आ रहा है 1 minus 31 into 1 x is, sorry, 31 into 1 is 31 plus 13. What is the answer you are getting? 0. Now factor and remainder theorem method states that if at x equals to 1, if this expression is equals to 0, it means that x minus 1
is the factor of this expression. What is the meaning of this term factor? Factor means this expression when divisible by through x minus 1 will be completely divided. And what will be the remainder? 0. And let me tell you one thing. पता है तुम लोग को ये जो x का वैल्यू मैंने 1 यहाँ पे लगाया है और उससे इसका आंसर 0 आया है. 0 क्या है पता है? रिमाइंडर ही है. तुम लोग को अगर क्लास 10 का पॉइंट याद होगा, टॉपिक याद होगा, तो याद होगा तुम लोग को रिमाइंडर निकालने का ऑल्टरनेटिव वे भी होता है, मेथड भी होता है. क्या होता है? अगर मान लो मुझे जानना है कि x minus 1, इसको अगर हम x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? बिना हम लॉन्ग डिवीजन किए हुए भी जान सकते हैं. व्हाट इज दैट? x minus 1 x के किस वैल्यू पे 0 होगा? 1 पे. तो फिर 1 यहाँ पे पुट कर दो. पुट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज अ रिमाइंडर. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम. ये शॉर्टकट वे है रिमाइंडर निकालने का. तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया? 1 पुट करके इस एक्सप्रेशन में रिमाइंडर निकाला. रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये 1 पे अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 लेफ्ट में ले लो. x minus 1 इज अ फैक्टर. Did you get my point? फैक्टर है. अगर x minus 1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्लियरली 0 आएगा. रिमाइंडर 0 आया था और आएगा. तो let us divide now. Let us divide now. What is multiplied to x to get x cube? It is x square. We have plus x square minus 31x plus 30. All right. What is multiplied to x to get x square? It is plus x. It's cancelled. Here we are getting minus 30x plus 30. What is multiplied to x to get minus 30x? It is minus 30. So this becomes minus 30x plus 30. So you are finding that yes, remainder is 0. Now, suppose if I divide any number by its factor, obviously remainder is 0, and we get one more factor. It means 12 can be written as 3 into 4. Exactly same way, this expression can also be written as x minus 1 into x square plus x minus 30, 30. I hope it is clear to everyone. Means we have factorized this. Means if I factorize, write 12 as 3 into 4, as remainder is 0. Similarly, I can write this expression as x minus 1 into x square plus x minus 30. Now let us further factorize this expression if it is possible. Yes, and clearly we find that it is possible. So we have x minus 1. What is common in both these expressions? X plus 6. What is left? X minus 5. So either x minus 1 equals to 0, x plus 6 equal to 0, x minus 5 equal to 0. So from here the value of x is 1, x is minus 6, x is 5. So how many critical points we have obtained? We have obtained 3 critical points. I want everyone to copy down all the workings which I have explained because ये सब चीज मैंने अभी बताया फिर बाद में भूल जाओगे तो it's better you all copy first. I'm giving you time to copy. Yes, and if you have any doubt you can ask. I'm just taking a pause for 1 minute, okay? So now let us move ahead. Okay? I think everyone is clear till here. सबका यहाँ तक clear है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. So therefore, x equals to 1, comma minus 6, comma 5 are the critical points. अब हम लोग क्या करेंगे देखना है पर इस फंक्शन का f dash x का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार. Again differentiating, check in your copy. Differentiating f dash x with respect to x. So we get f double dash x equals to, what is ddx of 4x cube? It is 12x square, all right. What is ddx of 124x? 124.
ddx of 120 0. Now let us take case 1, x equals to 1 first. केस 1 x equals to 1, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 into 1 minus 24. That is, see, your only one and only one objective is not to determine value. Don't I mean focus on कि वैल्यू क्या होगा, बस इतना फोकस करो कि वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले पूरा वैल्यू निकाल करके। सभी बहुत को क्या करेगा, पूरा कैलकुलेशन करके क्या आएगा वो निकालेंगे। ये छोटा है, ये बड़ा है। 12 into 1 is 12. 12 minus 124 is what? Negative. Negative means less than 0. तो एक बार तुम लोग कंक्लूजन वाले वो देखना कॉल पार्ट स्टेप्स। अगर f डबल डैश a पुट करने से आंसर लेस देन 0 आ रहा है तो बताओ तो ये पॉइंट क्या है, बताओ तो मैक्सिमम वाला है या मिनिमम वाला है, बताओ। मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला है। सबको एक बार देखना कॉपी। देयरफॉर x equals to 1 is the point of not maximum but local maximum. Please note down, you must write this local maximum. Case 2, when if I take x equals to 6, if I take x equals to 6, sorry, minus 6 here, okay, and let us substitute here, okay. So we have 12 into minus 6 whole square, that is 72 minus 124. Again it is less than 0. Note down, minus 6 का square, sorry, गलत minus 6 का square 36 होते हैं, 36 12 है 432. It is 432. And what is 432 minus 124? It is positive, means greater than 0. देखो हम इतना दिमाग नहीं लगा रहे वैल्यू क्या है, हमको वैल्यू से क्या मतलब है, हमको सिर्फ इतना से मतलब है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉइंट को सेकंड ऑर्डर में पुट करने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव आ रहा है मतलब मोर देन 0। मोर देन 0 मतलब x equals to minus 6 is the point of local minimum. Case 3 is x equals to 5. Case 3 is x equals to 5. अब 5 substitute करते हैं। So we have 25 12 जा clear, तो 25 12 जा क्या होगा 300, है करेक्ट? हाँ सर। 300 minus 124 is greater than 0. इतना हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 300 minus 124 क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस हो गया, इतना ही काफी है। Therefore x equal to 5 is the point of local minimum. All right, copy down till here once everyone. यहां से देख रहे हैं हम लोग कि ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमम है। इज दिस क्लियर? सो 10 का 2 पॉइंट ऑफ मिनिमम है, 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर द लोकल maximum value equals to, you just put this one in the function and determine what is the value, and local minimum दो आंसर है, इस पे एक मिनिमम वैल्यू आएगा एक। और अगर जैसे किसी को डाउट है कि ग्राफ पे इन्फ्लेक्शन क्या है, मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा, अभी नहीं, ग्राफ ड्रॉ करके उसको मैं बताऊंगा। कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर लेके आऊंगा, मतलब है मोबाइल में बट इट इज नॉट सफिशिएंट, ओके। इसमें बहुत सारा वैल्यू जो है ना वो बहुत अजीब सा आ जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम कैलकुलेटर लेके आएंगे, उसको प्लॉट करके तुमको बता देंगे, ऐसा एक ग्राफ लेंगे जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, तो बहुत क्लियर हो जाएगा सबको ना। अभी हम क्या करते हैं, अभी एक सम तुम लोगों को देते हैं करने के लिए, वो अगर कर लिया तो आज हम लोग एक सम करेंगे। देखो ये एक्सरसाइज में मैं तुम लोगों को एक सम अभी दे रहा हूं करने के लिए, और एक सम जो मैं दे रहा हूं इसके बाद मैं करूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। मतलब मान के चलो कि इस एक्सरसाइज से ये वाला सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा, एग्जाम में डायरेक्ट छपना चाहिए वाला सम, सोच लेना। तो मैं एक सम दे रहा हूं, तुम लोगों को करो, उसके बाद मैं ये सब सम्स करूंगा, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन, आई एम गिविंग इट ऑन द बोर्ड। So the question is, let's take number 12 itself, okay? 12 ही कर दो, 12 को सेकेंड ऑर्डर से करो, फर्स्ट ऑर्डर से तो किया ही तुम लोग, सेकेंड ऑर्डर से करो, ओके? सो आई
I want everyone to complete this sum. So now we'll do the next sum, and that is question number 18. So you have a function. First of all, उस फंक्शन का मैं एक नाम दे देता हूँ y या fx कुछ भी, मान लो मैंने y लिया। और एक बार थोड़ा ध्यान से नोट करना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखना एक बार, थिंक दिख रहा है। देखो लिखा हुआ है कि शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर 1 by x इज e टू द पावर 1 by e, ये हम लोग को शो करना है। तो फिर क्या मैं एक बार मौका दूं करने के लिए? यस हाँ सर। हाँ सर। सो मैं एक बार ट्राई करूँ। एक टेंशन जिसका नहीं हुआ उन लोगों के लिए मैं एक बार बोर्ड पे बता रहा हूँ, ध्यान देगा। So see, as you have studied in this differentiation chapter that if base is a variable and power is a variable, you cannot differentiate directly. All right. तो यहाँ पे you know that second order derivative test करो या first order, उसमें पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएट तो कर नहीं पा रहे हम लोग क्योंकि बेस और पावर दोनों वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे हम लोग। So taking log both the sides. So let us take log both the sides. So we are finding that we have log y equals to 1 by x into log x. Alright everyone? Now we will differentiate. Differentiating both the sides. First step. पहला step क्या है? Differentiate करना with respect to x. Now what is ddx of log y? ddx of log y is 1 by y, and then y का further derivative is dy by dx. Let us apply either u by v rule, that is your choice, or u into v rule. दोनों ही कर सकते हैं. So formula है u ddx of log x, which is 1 by x, plus v, that is log x, into ddx of 1 by x, that is x to the power minus 1, and then you can differentiate. Let us take this y on the right hand side. This we have 1 by x square ddx of x to the power minus 1 is minus 1 x to the power minus 2. At the place of y, you can now substitute value of y in terms of x. Okay? Now plus into minus is minus. So we have log x, clear? X to the power minus 1 can be written in denominator as x square. Take LCM. So we have dy by dx is x to the power 1 by x, 1 minus log x by x square. All right everyone. अब आगे सेकंड, ये हो गया पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, ठीक है? डिफरेंशिएट तो हम लोगों ने कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स। Now for the critical points, we have f dash x बोलो या dy by dx बोलो, एक ही बात है। Equalize this with 0. Okay. So what is left? If you cross multiply, what is left? X to the power 1 by x into 1 minus log x equals to 0. Now everyone just note down one thing. I want your attention everyone. That product 0 rule states that if you have got product of several factors and that is equal to 0, make sure we can equalize every factor with 0 as we do in quadratic equation. After factorization, what do? We equalize every factor with 0
to determine the value of x. All right. Here also we will do the same thing, but note down everyone, x to the power n cannot be equal to 0. We don't have any such values of n for which x to the power n can be equal to 0. It's not possible. I just take a simple example. Tell me 2 का पावर कोई भी ऐसा सोचो जिससे उसका आंसर 0 हो सकता है. क्या हो सकता है बताओ? 2 का पावर ऐसा कोई हो सकता है नंबर जिससे इसका आंसर 0 होगा? ऐसा है पॉसिबल? बताओ तो एक बार. Yes? Do you think? You don't have any such number. Because अगर हम 0 लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा. नेगेटिव नंबर लगाएंगे तो आंसर 1/2 जो कि 0 नहीं होगा, 0.5 होगा. -3 लगाएंगे पावर में तो 1/2 क्यूब होगा, दैट इज 1/8, वो भी 0 नहीं आएगा. सो वी फाइंड दैट x to the power 1/x cannot be equals to 0. Please make sure you can understand. I mean, you can just write down this in copy and you can use it everywhere wherever you have this situation. So what is left? It implies 1 minus log x. It means 1 minus log x equals to 0. That is log x equals to 1. Now can you help me, anyone who can help me, how to solve this? Anyone? Log x equal to log e. Yes, very good. We find that the base of logarithm is nothing is e. Can I write 1 as log e base e? Yes, because 1 को हम लोग log e base e लिख सकते हैं, because log का वैल्यू और बेस जब सेम होता है तो आंसर क्या होता है? 1 होता है. दोनों तरफ बेस सेम है तो वैल्यू को इक्वलाइज कर दो. x equals to e is the critical point. यहां पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है. अब ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ये हम लोग को पता नहीं है. तो कैसे जानेंगे हम लोग? टेस्ट कर लेते हैं. कौन सा टेस्ट करेंगे भैया? कुछ नहीं दिया है, ऑलवेज प्रेफर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. कुछ मेंशन नहीं है, ऑलवेज प्रेफर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. सो आफ्टर दिस लेट अस वंस अगेन डिफरेंशिएट. इसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट कर लेते हैं. So again, differentiating dy by dx with respect to x. So we get d dx of dy by dx is d square y by dx square. I don't think I have to explain you this thing कि ये कैसे आया. dy by dx का डेरिवेटिव d square y by dx square होता है. इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? इस पूरा को u ले लेते हैं, दिख रहा है ना, और इसको v ले लेते हैं और u by v रूल अप्लाई कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या है? एक काम करते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे जगह का कमी है. एक काम करो, ये कॉपी कर लो पहले तुम सबको. ओके, फिर मैं इसके बाद लेफ्ट पार्ट यूज करके मैं इसको कराऊंगा. कॉपी डोंट फर्स्ट. सो आफ्टर दिस व्हाट विल डू इज, अब हम इसके बाद इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है. सो लेट अस डिफरेंशिएट नाउ. So we have d square y by dx square equals to u by v अप्लाई करते हैं हम लोग. फॉर्मूला है v d dx of v. ये तो अब समझाना नहीं पड़ेगा, समझ जाएगा तुम लोग. d dx of v में दो चीज का प्रोडक्ट है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? u d dx of v. तो बताओ तो d dx of 1 minus log x क्या होगा? -1 by x हो जाएगा, प्लस v that is 1 minus log x into d dx of x to the power 1 by x into d dx of x to the power 1 by x ब्रैकेट क्लोज. सुनना एक बार फिर से. फॉर्मूला है u by v का v into d dx of u. अब यहाँ पे ये जो है दो चीज का प्रोडक्ट है, तो मैंने एक पहले ब्रैकेट यूज किया और फॉर्मूला अप्लाई किया u into d dx of v plus v into d dx of u minus x to the power 1 by x into 1 minus log x into d dx of v, that is 2x. समझ में आया तो बात? whole thing divided by v square. Okay, so what I have done, I have applied u by v and formula क्या है u by v का? v d dx of u. देखो d dx of u ये है माइनस u d dx of v, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. यहां पे आप ध्यान देना एक बार सबको ही,
प्लस माइनस इज माइनस x टू द पावर 1 by x डिवाइडेड बाय x, और x टू द पावर 1 by x का डेरिवेटिव हम लोग को पता है, कोई बता सकता है कैसे पता है? यस, x टू द पावर 1 by x क्या है, तुम बताओ एक बार। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाला था। यस एग्जैक्टली, देखो अगर तुम ध्यान दो तो y इक्वल टू x टू द पावर 1 by x, मतलब ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ x टू द पावर 1 by x। इसका डेरिवेटिव तुमको पता ही है, वो क्या है, dy by dx है, और dy by dx का आंसर क्या है, ये यही तो है ना, ddx ऑफ y क्या है ये, इसका हमको डेरिवेटिव पता है। इस जगह पे अब तुमको वापस स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ये लिख दो। ओके, आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट डाउन, इसके जगह पे ये x टू द पावर 1 by x एंड ब्रैकेट में 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 1 by x into 1 minus log x into 2x, whole thing divided by x to the power 4। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंप्लीफिकेशन करके तुम अपना दिमाग खराब करोगे, कोई फायदा नहीं है ऐसे करके। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें तो कितना क्रिटिकल पॉइंट है बताओ, तो एक ही है, तो ये डायरेक्ट इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर में हम इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं, जहां जहां x से वहां पे e, तो ध्यान देने का, e स्क्वायर माइनस e टू द पावर 1 by e by e, what is the value of log e, can you please help me, what is the value of log e? 1। 1, why, because log e का जब बेस कुछ नहीं है, log e का बेस कुछ नहीं है मतलब e है, log e बेस e क्या होगा 1, तो फिर 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 इंटू ये क्या होगा 0, इसका मतलब प्लस के बाद जो इतना लंबा दिख रहा था ना एक्सप्रेशन, जो दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि कैसे होगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, तुम खुद देखो ना, log e 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, अब क्यों हम कैलकुलेट करेंगे ये पूरा, ये 0 हो गया, माइनस यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0, तो पूरा पार्ट 0 हो गया, बाय देखो कितना आसानी से हो गया, दिखना सम दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, अगर तुम पेशेंस रखो ना, दिमाग को कूल रखो, तो उतना ज्यादा इजी होता है। अब तुम क्या करता, बहुत पहले एलसीएम लेता, सिंपलीफाई करता, कितना टाइम वेस्ट होता, सीधा क्या करो उसमें वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि दिख रहा था log e 1 1 माइनस 1 0, पूरा पार्ट खत्म, ये पूरा पार्ट खत्म, बचा ये प्लस 0 और आगे e स्क्वायर और नीचे e टू द पावर, खत्म हो गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, माइनस प्लस माइनस माइनस e स्क्वायर e टू द पावर 1 by e by e टू द पावर 4। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा कैलकुलेशन में, क्यों दिमाग लगाऊंगा, ये देखो अगर ध्यान से, तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है और इसकी आगे का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये लेस देन 0 होगा या मोर देन 0 होगा बताओ, साइन नेगेटिव है, बस हो गया ना खत्म। तुम बताओ हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे काट करके, बहुत लोग काटेंगे इसमें, ई काटेगा, ये भी काटेगा, और फिर सोचेगा, तो क्यों सोचेंगे हम लोग को पता है कि ये पूरा पॉजिटिव है और इसके आगे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो ये रिजल्ट लेस देन 0 होगा, therefore x equals to e is the point of local maximum, and what is the maximum value, therefore the local maximum value is, कोई बता सकता है क्या होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फटाफट बताओ तो, यस, टू द पावर 1 by e, y क्या है, y है x टू द पावर 1 by x, तुमको पता चल गया कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो बस x के जगह पे e लगा दो। प्रूफ क्या करना था, देखो तो एक बार, ये प्रूफ करना था, शो दैट द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज e टू द पावर 1 by, तो देखो सम ये बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन है बहुत बढ़िया सम, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, तुमको सैंपल पेपर में लगभग बहुत जगह दिखेगा, so this is very very important, note it down, after the class gets over once again redo, if you have find doubt again we will discuss, if you say it but okay, तुमको बोलना पड़ेगा, और नेक्स्ट डे हम लोग